हे ओके. प्रतीक, हा बोला ना. अरे प्रसादची ओळख करून दे ना जरा. त्याचं अहो मी काय नवीन आहे का? एक सर. पद्धत असते. हो सर, तुम्ही करून द्या. मग तुम्ही आज आहात, तुम्हीच करून द्या व्यवस्थित. नाही. यू अरे गो सर करून द्या ना सर. एक तर तुम्ही येत नाहीत, काय बोलत नाहीत. तुम्ही बोला ना प्लीज. Okay, so very happy to introduce to you Dr. Prasad Vyavare from Nagpur. He is working as an HOD of Organon Department. मला कॉलेजचं नाव आठवत नाही प्रसाद. गोंदिया होमिओपॅथिक कॉलेज. हा, आणि अनेक वर्षांपासून तो व्यवहारे सर ही जबाबदारी सांभाळत आहेत कॉलेजमधली हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आणि बरीच लेक्चर्स पण ते घेत आहेत, आणि सैगल मेथडशी ते अनेक वर्ष असोसिएटेड आहेत. गेली कमीत कमी 4 वर्ष तरी प्रसाद. येस सर. या, अँड ही हॅज बीन अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ डॉक्टर विलास कुलकर्णी. पण आता ते आपल्या ग्रुपमध्ये आलेले आहेत, आणि त्यामुळे आपल्या ग्रुपचंही एक शान वाढलेली आहे असं मी म्हणेन. बस का. Let us all welcome Dr. Prasad Vyavare. Now you can start. थँक यू सर. प्रसाद सर, बोला. ही इंट्रोडक्शन आपण फ्रिक्वेंटली हे घेतलं ना लेक्चर, की मग सारखी इंट्रोडक्शन नाही द्यावी लागणार. कळलं. पुण्यावरून बोलले तुम्ही. बाय. थँक यू सर. बिफोर वी स्टार्ट फॉर 50 मिलीसिमल पोटेंसी, 50 मिलीसिमल समझना है आपको तो पहले एडिशन समझना पड़ेगा कि जब तक 6th एडिशन नहीं था तब तक 50 मिलीसिमल पोटेंसी भी नहीं थी. देयर वाज नो सच एनी पोटेंसी. एवरीबडी वाज डूइंग व्हाट वी आर डूइंग टुडे, the 30, the 200, the 1M. But Hahnemann has limited only for the 30th. So there was no such potency. The people knew that something is going to come in the 6th edition. As you know, friends, when we talk about the LM potency, we have to know about the 6th edition. So this is just, I made an attempt that how many actually attempts have been made to procure the copy of 6th edition. You know, after 78 years of Hahnemann's death, after his death, the 78 years, it took 78 years for that small book to come into light. And it was so exciting that so many other attempts have been made to procure that copy. And I don't want to go into details of all those history, but this is just a summarize. I have met Boninghusen himself in 1856. Almost few years after Hahnemann's death, has tried to procure a copy of 6th edition of Organon. Boninghusen, whose son laterly married with the adopted daughter of Hahnemann. So basically ये दोघं नंतर व्याही झाले posthumously. Then second attempt was been made in immediately 65. Dr. Lutz, who was also a staunch follower of Hahnemann. Then the third attempt was made in 1865 by Sus Hahnemann, who is a grandson of Hahnemann. He also tried to get the 6th edition, which was nothing but the augmented, corrected edition of the 5th edition of Organon, which was in the custody of the second wife. Then Constantine Hering in 1865 again tried to get, he has started dealing with the Millennium, and the amount then it was fixed was $50,000. So it was not possible for them to collect all this money, so that also gone. So in 1868 also there was a mass public request that the 6th edition should see the face of sun, but even that was not possible. Carol Dunham of New York has also tried his level best to get the copy. And Baez of London, Dr. Baez, he also made very strong attempt in 1877. Dr. Grunzi, you must also be knowing, in 1880 also tried. Richard Hell is a strong follower of the Hahnemann. He wrote a very wonderful book also, Life and Letters of Hahnemann. तो मैं आज जो भी बात कर रहा हूँ उनके बुक से भी मैंने काफी चीजें ली है.
but final attempt was been made by Richard Hell and William Borick in 1921. उन्होंने वो बुक हासिल किया फ्रॉम द एयर्स ऑफ बोनिंग हुसैन, इनके जो वारसदार थे, क्योंकि मेलेनी तो चली गई थी. तो दिस इज हाउ इन 1920 6th edition was published in 1920, but it was in German language, and immediately 1 year after, the Borick has translated into English, that is in 1921. So this was just the background to let the audience know that how many efforts was there and how many people were running after the 6th edition of Organon. Because ये बताना क्यों जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये बुक लाइट में नहीं आएंगी तब तक 6th एडिशन नहीं आएगा, जब तक 6th एडिशन नहीं आएगा तब तक 50 मिलीसिमल पोटेंसी सामने नहीं आएगी. तो दिस इज ऑल द अटेम्प्ट्स मेड बाय द वेरियस पीपल to get the copy. Now we'll go into the subject proper. This is how this is the basic thing about today's matter. Homeopathic aggravation and all just a piece of information. मैं यहाँ पे जो भी स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, जो भी शेयर कर रहा हूँ एफोरिज्म, वो सब 6th एडिशन के है. तो सब चीजें लागू पड़ेगी 50 मिलीसिमल पोटेंसी के ऊपर. ठीक है, अगर आप 50 मिलीसिमल पोटेंसी अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हो तो ये एफोरिज्म आपको लागू पड़ेंगे. अगर आप सेंटिसिमल यूज करते हो और ये एफोरिज्म पढ़ोगे, सो देयर इज अ ग्रेट डेंजर. वो डेंजर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा. पोसोलॉजी एंड डोसेज को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग. जस्ट वी विल क्लियर आवर डाउट्स. शुरुआत होती है 161 से, दैट इज होम्योपैथिक एग्रीवेशन. होम्योपैथिक एग्रीवेशन डॉक्टर साहब ने लिखा है यहाँ पे, इफ द एक्यूरेटली चोजन मेडिसिन was given in proper small gradually higher doses. यहाँ पे सबसे बड़ा उनका चेंज हुआ है. जो आदमी बोल रहा था, जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, हनीमन बोल रहे थे एक डोज देके छोड़ दो, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ग्रेजुअली हायर डोजेस. सिंगल डोज की बात नहीं हो रही यहाँ पे. ईच समवॉट मॉडिफाइड विथ रिन्यूड डायनामाइजेशन. मॉडिफाइड, फर्स्ट डोज से सेकंड डोज मॉडिफाइड होना चाहिए, वही नहीं होना चाहिए. उसका रीजन क्या है अगले एफोरिज्म में देखेंगे हम लोग. इसलिए आप जब 50 मिलीसिमल, आपको पता होगा कि 50 मिलीसिमल में आपको पेशेंट को बोलना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है कि हाउ टू गिव स्ट्रोक्स टू दैट बॉटल. हम लोग जो अब जैसे हम लोग ऑफनली प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट, तो हम लोगों ने एक लिटरेचर ही बना के रख दिया है कि जब भी हम 50 मिलीसिमल पेशेंट को देते हैं तो हम लोग उसको वो एक जेरोक्स दे देते हैं कि दिस इज हाउ ही हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. तो हमको एक प्रैक्टिकली अच्छा उसका मतलब वही सब चीजें बार बार बतानी नहीं पड़ती है. तो एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं हम लोग कि इसको स्ट्रोक्स कैसे देना है. उसके पीछे फिलॉसफी ये है, 50 मिलीसिमल में हम लोग क्यों पेशेंट को बोलते हैं कि स्ट्रोक्स देना है, उसके पीछे का ये जो मॉडिफाइड वर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर ये मॉडिफाइड नहीं होगा तो क्या होगा, ये अगले वाले एफोरिज्म में मैं समझाऊंगा. लेकिन पहला डोज दूसरे डोज से मॉडिफाइड नहीं रहेगा या डायनामाइजेशन में मॉडिफाइड नहीं होगा तो फिर वो दवा काम नहीं करेंगे. टाइम फैक्टर, aphorism number 246. You can write it down. I have not even changed the comma and not a single word I have changed. Only thing I have just taken the sentences which are at most important to save our time. Such a remedy in such a case can accomplish naturally within 40, 50, 60, 100 days. ठीक है, such a remedy in such a case can accomplish naturally within so many days. This period, पेशेंट को ठीक होने का जो समय लग रहा है, this period should be diminished to 1/2, 1/4 and even still less. तो 50 मिलीसिमल का इंपॉर्टेंस आप देखिए हनीमन साहब ने कैसे बोला है कि पेशेंट को ठीक होने के लिए जो टाइम है वो आधा हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, या उससे भी कम समय में पेशेंट ठीक हो सकता है. so that a much more rapid cure, जो उनका पहले से ही था कि क्योर शुड बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट. तो हमारा होता क्या है क्लिनिक में कि कोई 2 शब्द हमारे पकड़ में आते हैं, तीसरा छूट जाता है ना.
अगर रैपिड एंड परमानेंट करने जाओ तो वो शायद उसको परमानेंसी नहीं आती उसमें, या परमानेंट करो तो उसमें जल्दी नहीं होता, पेशेंट भी बोर हो जाता है, डॉक्टर भी बोर हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हनीमन ने ये निकाला है, LM पोटेंसीज। ये कैसे होता है, वी विल सी नाउ। Rapid cure might be obtained and this may be very happily affected. This is how he is introducing the 50 millisimal scale. कि ये जो ऊपर में जो है, ऊपर में जो बात कर रहा है, this is the centesimal 5th edition centesimal scale, and this is he is talking about the 6th edition scale, that is the 50 millisimal potency. Pratik sir, okay? Yes, sir. Okay. Okay, now we are going to the footnote of aphorism 246. उसी aphorism का ये footnote है. What Hahnemann is writing, what I said in the 5th edition of the Organon, in a long note, 246 का जो 5th edition पढ़ेंगे आप, बहुत 1.5 पेज की उन्होंने बहुत बड़ी वहाँ पे footnote दी थी. So what I said in the 5th edition of Organon, in the long note to this paragraph, to this aphorism, in order to prevent these undesirable reactions, undesirable but unavoidable. होम्योपैथिक एग्रीवेशन को ये कैसे डिफाइन करते हैं कि अनडिजायरेबल वो उतना जो बढ़ता है पेशेंट का जो फर्स्ट फ्यू आवर्स या फर्स्ट फ्यू डेज जो एग्रीवेशन पेशेंट बोलता है कि होम्योपैथी पहले बढ़ाती है फिर कम करती है, यहाँ से ये नॉमेनक्लेचर आया होम्योपैथी में. उसका रीजन है कि फर्स्ट फ्यू आवर्स या फर्स्ट फ्यू डेज पेशेंट को लगता है कि मेरी बीमारी एक्चुअली बढ़ी है. एक्चुअली बीमारी नहीं बढ़ती है, जो सिम्टम सिमिलर है उसके ऊपर एक सिमिलर ड्रग मिलता है, तो थोड़े देर के लिए 1+1 ऐसा लगता है कि 2 हो गए, बट वो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 होता है. दैट इज व्हेन टू सिमिलर डिसीजेस मीट एंड वन इज द हायर पावर, no one remains, the cure happens. This is what we learn in the Organon. Was all the experience I then had justified. अभी हनीमन क्या बोल रहा है, but during the last 4 or 5 years, 6th edition was ready to publish in 1842 and he is writing there 4 to 5 years. मतलब ये कहीं ना कहीं 1838 या 1837 की बात है जब हनीमन ने एक्चुअली 50 मिलीसिमल के ऊपर काम करना शुरू किया था. But during the last 4 or 5 years, however, all these difficulty are wholly solved. मतलब कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ डिफिकल्टी है, कुछ चीजें हैं जिसको आंसर करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसे हैं वहां पे रिपेयर वर्क करना जरूरी है, कुछ चीजें वहां पे है जो मॉडिफाइड करनी पड़ेगी. तो उन्होंने वहां पे खुद, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि अपने ही काम के ऊपर वो बोलते हैं कि वहां कुछ करेक्शन जरूरी है. जनरली हमको लगता है कि हमने जो किया वो सही है. हनीमन को ऐसा रहता था तो 6 एडिशन नहीं निकाले रहते उन्होंने. So that was Hahnemann. But during the last 4 or 5 years, however, all these difficulties are wholly solved by my new altered but perfected. हे शब्द अतिशय महत्वाचे आहे की माझी प्रिस्क्रिप्शन देण्याची पद्धत ती ऑल्टर्ड केलेली आहे पण ती परफेक्ट है ना. देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, एवरी मूवमेंट इज नॉट फॉरवर्ड. हमने जो भी मूवमेंट किया है इसका मतलब हम लोग हमेशा सामने जाएंगे जरूरी नहीं है, मूवमेंट करने से हम पीछे भी आ सकते हैं. बट हनीमन क्या बोल रहा है, मैंने कुछ चीजें यहाँ ऑल्टर्ड की है, चेंज की है. किसके लिए? टू गेट परफेक्ट. तो ये 50 मिलीसिमल का इंट्रोडक्शन हनीमन साहब कर रहे हैं कि हाउ ही हिज न्यू मेथड एज द सेम केयरफुली सिलेक्टेड मेडिसिन मे नाउ बी गिवन डेली एंड फॉर मंथ्स. अब आप देखिए कि कहाँ कितना ज्यादा शिफ्ट हो गया है, पैराडाइम कितना शिफ्ट हुआ है. पहले जो हनीमन बोल रहे थे कि सिंगल डोज देना है, हैंड्स ऑफ, डोंट रिपीट अनलेस द सेम सर्कमस्टांसेस अकर, देन हम लोग सेकंड प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़े हैं डॉक्टर केन साहब के, वो भी हमने पढ़ा, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था. बट 6, क्योंकि आप एक चीज समझ लेना कि केन की जो भी फिलॉसफी है वो 6th एडिशन के पहले की है.
तो एक ये भी आपको एक थोड़ा वार्निंग देते चलूं मैं कि जो भी आप लोग पढ़ते हो केंट की फिलोसॉफी, दैट इज ऑल यू मस्ट नो दैट ही इज टॉकिंग अबाउट फिफ्थ एडिशन, because Kent died in 1916. Kent has died in 1916 and the Yes. sixth edition came into light in 1921. 20. Yes. So almost 5 years after his death. Although it has written so many years back, but was not published, why I told you in the first slide. Yes. But after his death, the sixth edition came into light. So हम जब कोई ऑथर्स पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो थोड़ा टाइमलाइन करना जरूरी है। Yes. ये लाइन जो है आखिरी वाली, मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। द सेम केयरफुली सिलेक्टेड मेडिसिन मे नाउ बी गिवन डेली एंड फॉर मंथ्स। ये नियम आप सेंटिसिमल में लगाओगे तो पेशेंट कहाँ रहेगा एंड अल्टीमेटली आप कहाँ रहोगे। दिस इज डेंजरस। Yes. म्हणून एक पोटेंसी की फिलॉसॉफी दूसरे पोटेंसी में लगाना, दॅट कुड बी डेट्रिमेंटल, दॅट कुड बी डिझास्ट्रस। तुम्ही पेशंटला रोज तुमचं बेलाडोना 200 बेलाडोना ड्रग असेल, बेलाडोना 200 तुम्ही डेली अँड फॉर मंथ्स देत गेले, तर पेशंट कुठे राहील माहिती नाही, पण तुम्ही तरी कुठे राहाल आय डोंट नो। म्हणून हे सेंटेन्स वाचताना म्हणून मी तुम्हाला आधीच एक वॉर्निंग दिली दॅट दिस इज कन्फाइंड टू 50 millisimole 50 potency. millisiemen, This is yeah. confined to sixth edition of organon. म्हणून हे तुम्ही जाऊन सेंटिसिमल मध्ये लावू नका. Don't That's apply these things into your centesimal. ठीक आहे? Kent never knew about LM potencies. Yes, yes. Not even he dreamt that की असं काही असेल म्हणून. Next slides. This is most important. 50 मिलीसिमल का जन्म इस सेंटेंस से हुआ है। कौन से सेंटेंस से हुआ है? इट इज इम्प्रैक्टिकल टू रिपीट द सेम अनचेंज्ड डोज ऑफ ए रेमेडी once you prescribe a medicine in certain potency, सेम पोटेंसी में आप उसको दूसरा डोज रिपीट करते हो तो वाइटल फोर्स कभी भी उस अनचेंज डोज को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको वो सेकंड डोज पहले वाले से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एग्यूमेंटेड होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। और आप ये देखोगे कि हनीमन ने एक बार लॉ ऑफ सिमिलिया एक बार उनके दिमाग में आने के बाद उन्होंने कभी उसको सेकंड थॉट नहीं दिया। लॉ ऑफ क्योर इज लॉ ऑफ सिमिलिया, ये उनको दिमाग में फिट था। आगे की लड़ाई उन्होंने इतने साल सिर्फ एक ही चीज के लिए किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी स्ट्रांग जरूर होनी चाहिए कि नेचुरल डिसीज को थ्रो करे, क्योर करे, लेकिन वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि अननेसेसरीली होम्योपैथिक एग्रीवेशन ऐड करे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ ये सेंटेंस फॉर ऑल ऑफ यू। होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी स्ट्रांग जरूर होनी चाहिए कि जो नेचुरल डिसीज को ठीक करे, बट इतनी भी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि अननेसेसरीली इस प्रोसेस में होम्योपैथिक एग्रीवेशन प्रोलॉन्ग चलती रहे और पेशेंट को और तकलीफ हो। तो इसका बैलेंस इन्होंने कहीं ना कहीं देखा इन द फॉर्म ऑफ 50 मिलीसिमल पोटेंसी। 50 मिलीसिमल पोटेंसी इतनी स्ट्रांग जरूर है कि जो नेचुरल डिसीज को ठीक करती है, उखाड़ के फेंकती है, बट इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि अननेसेसरीली एग्रीवेशन पैदा करती है। तो इसका कहीं ना कहीं बैलेंस जो था वो हनीमून को मिला और यही वो चाहते थे। वो कहीं ना कहीं बैलेंस, वो उनको मीडिया 1:50,000 हो गया ना। सेंटिसिमल में मीडिया है 1:100, डेसिमल में 1:10। यहाँ पे जो मीडिया हो गया है वो 1:50,000 है। तो मीडिया बढ़ने के कारण अननेसेसरीली एग्रीवेशन इसमें नहीं आता है। आई रीड दैट सेंटेंस अगेन। द वाइटल प्रिंसिपल डज नॉट एक्सेप्ट सच अनचेंज डोजेस विदाउट रेजिस्टेंस। मतलब विदाउट रेजिस्टेंस नहीं, मतलब वो रेजिस्टेंस देता ही है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ही इज नॉट इन दैट पोजीशन टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, जैसा आपने को नींद आ रही है और आपको कोई ऑर्गेनन पढ़ा रहा है तो यू रेजिस्ट, वो अंदर जाता ही नहीं है ना। वैसे ही होता है कि द वाइटल फोर्स डजंट एक्सेप्ट इट, इट जस्ट रेजिस्ट। द पेशेंट में इंडीड बी मेड सिक इन अनदर वे। आप वही ड्रग अननेसेसरीली रिपीट कर रहे हो उसी पोटेंसी में, तो उसमें खतरा क्या है? The patient may indeed be made sick
इन अनदर वे मतलब आर्टिफिशियली उसको आप और सिक बना रहे हो, बाय रिसीविंग अदर सच अनचेंज डोजेस, उसको वही डोजेस बार बार रिपीट करोगे। और उसमें खतरा क्या है? सी द वर्ड्स ऑफ हनीमन, इवन सिकर देन ही वॉज। अब इससे ज्यादा क्या वर्ड्स हो सकते हैं? दिस इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड। मैं जब भी ये पढ़ता हूँ तो देन आई रियली शॉक्ड व्हाट हनीमन हिमसेल्फ हैज रिटन। ओके, द पेशेंट may indeed be made sick in another way by receiving other such unchanged doses, even sicker than he was. So this is just a piece of caution. But if the succeeding dose, जो आने वाला डोज है, is changed slightly, change slightly मतलब we ask the patient to give the strokes every time, namely potentize somewhat higher, पहले वाले डोज से, उसने जो सवेरे डोज लिया था उससे नाइट के डोज में उसने 10 स्ट्रोक्स दिए हैं, तो इट इज समहाउ हाइयर। 0/1 दिया था, हम 0/2 अगले बार देंगे, लेकिन उसने जो सवेरे रात को जो डोज लिया वो कहीं ना कहीं 0/1 से 0/1 पॉइंट समथिंग, 0/1 पॉइंट समथिंग, 0/1 पॉइंट समथिंग, इट वॉज चेंज फ्रॉम 0/1। ठीक है, फिर वो पेशेंट फॉलोअप के लिए आएंगे तो हम लोग उसको 0/2 देंगे। 0/2 का भी फिर वही होगा 0.1, 0.2, 0.3 जो भी होगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज ओके, देन आई विल प्रोसीड। यस, एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। यस, इट इज थैंक यू। सब लोगों को अगर समझाए तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। यही है Yes. जो रोज के तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम होता है, यही वही प्रॉब्लम है। ये पहले अभी जो तीन स्लाइड्स दिखा है, ये तुम्हारे रोज का क्लिनिक का प्रॉब्लम है। बहुत बार 30 देते हैं, बाद में भी 30 देते हैं, बाद में भी 30 देते हैं, 200 देते हैं, बाद में भी 200, बाद में भी 200, बाद में भी 200। Yes. तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है वो समझने की कोशिश करो प्लीज। Okay, sir. But if the succeeding dose is changed slightly, हाँ, आपका अपना प्रॉब्लम क्या है? अभी मार्केट में 100 अवेलेबल नहीं है, मार्केट के हिसाब से बीमारियां नहीं बनेंगी ना। यस, एग्जैक्टली। हाँ, तो हमारा एक मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को पूछा था जस्ट टू कि हमारे पास अगर 200 नहीं है, 30 है, तो क्या करेंगे? सर आपण 30चे 60 डोस देऊन टाकू ना, नसेल ते 30. आता त्या गरीबाला काय बोलायचं? त्याला कुठून शिकला त्यांनी ते? दैट इज हिज वे ऑफ थिंकिंग। इट्स वेरी सिंपल यार, अगर 30 के डोज है आपके पास और 200 देना है उसको, और नहीं है 200 पोटेंसी, खत्म हो गई, होता है कभी कभी क्लिनिक में, तो 60 डोज दे दो, नथिंग टू वरी। असं नाहीये, दिस इज द डायनामिक थिंग्स। यू कॅन, आपल्याला वजन नाही मोजायचं ते। यस, ठीक है, बट इफ द सक्सेडिंग डोज इज चेंज स्लाइटली एवरी टाइम, नेमली पोटेंटाइज समवॉट हाइयर, यस, ये आप पढ़ लेना 269, 270, जहां उन्होंने बोला है कैसे देना है, हम लोग आएंगे वो भी कवर करेंगे। देन द वाइटल प्रिंसिपल मे बी ऑल्टर्ड विदाउट डिफिकल्टी, थोड़ा सा अलग है, बाय द सेम मेडिसिन। आपको मालूम है ना कि वो मेडिसिन अभी भी इंडिकेटेड है, द बेस्ट ऑफ दैट मेडिसिन इज येट टू कम। आपको लगता है बेलाडोना ही है तो आप दीजिए, लेकिन बेलाडोना फिर काम करना बंद क्यों करती है? उसका रीजन है पहले की 3 स्लाइड। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, आपको डोजेस थोड़ा सा ऑल्टर करके देखो, इट विल बी एक्सेप्टेड। द सेंसेशन ऑफ द नेचुरल डिसीज डिमिनिशिंग एंड दस द क्योर ब्रॉट नियर। सगळ्यांचं ड्रीम एक ही है कि पेशेंट को क्योर करना, वो कहीं ना कहीं आप उधर नजदीक जाओगे। ओके, मैंने एक ये स्लाइड जानबूझ के दी है जो क्योंकि हर एक ऑथर के साथ उसका तरीका आप लोग अपने तरफ से बनाते हैं। आप कलकत्ता साइड जाओगे तो आपको तरीका अलग मिलेगा। इफ यू गो टू, आई हैव बीन टू बड़ौदा में जो डॉक्टर है, उनका नाम भूल गया मैं, तो ही वाज ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स। प्रतीक सर, कैन यू हेल्प मी? बड़ौदा में जो फेमस डॉक्टर है, उनका इंस्टीट्यूट भी है। आरपी पटेल। आरपी पटेल सर। थैंक यू। उनके प्रिस्क्रिप्शन मैंने देखा 50 मिलीसिमल ही देते हैं वो। ही हैज द लार्जेस्ट, आई हैव सीन द स्टॉक ऑफ 50 मिलीसिमल पोटेंसी। उनके पास मैंने देखा एक मेडिसिन 60 में अवेलेबल थी, मतलब आपको बेलाडोना रखनी है तो आपको बेलाडोना के 60 बॉटल लगेंगे।
आपको कैलकेरिया कार्ब रखना है तो उसके 60 बॉटल्स। यू कैन सी पूरा मैंने एक उनका डिस्पेंसिंग देखा मैंने, तो इट वाज होल रूम पैक विथ ऑल द 50 मिलीसिमल मेडिसिन विथ 1 to 60। एक्चुअली मार्केट में 1 to 30 ही मिलता है, बट उन्होंने मैनेज किया था 1 to 60। तो आरपे पटेल का भी मैंने सर का भी देखा, वो थोड़ा सा अलग डिस्पेंसिंग था, कलकत्ता में अलग होता है, बाकी इतना मेरे को पता नहीं है, और हर एक आदमी अपना कुछ ना कुछ उसमें ऐड करता है। तो मैं सोचा कि हनीमन ने क्या एक्सपेक्ट किया, हनीमन ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, हम लोग उनको ही अथॉरिटी मानेंगे। तो अगर आप 248 एफोरिज्म पढ़ लेंगे, उसका फुटनोट पढ़ेंगे, तो हनीमन ने पूरी डायरेक्शन दी रखी है, मेड इन 40, 30, 20, 15 और 8 tablespoon। When I started the practice, I went to the market, I have measured tablespoon कितना ml होता है, teaspoon कितना होता है, and then I made my preparations. So 40, 30, 20 or 15 or at least 8 tablespoon of water with the addition of some alcohol. Alcohol मतलब just a preserver. उन्होंने चारकोल भी बोला है, बट अभी चारकोल की जरूरत नहीं है, अल्कोहल हमको डिस्पेंसिंग कहीं भी एब्सोल्यूट अल्कोहल मिल जाता है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। तो वाटर स्टील हो खराब होने से बचाने के लिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल इन 78 टेबलस्पून ऑफ वाटर एंड आफ्टर थरो सक्शन। अब वो सक्शन कितने देने हैं उसको भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, 8 है, 10 है, 20 है, कितने सक्शन देने हैं। ऑफ द वायल टेक फ्रॉम इट 1 टेबलस्पून। अगर हम 8 टेबलस्पून लेते हैं तो उसका 1 टेबलस्पून एंड पुट इन अ ग्लास ऑफ वाटर कंटेनिंग 7 to 8 स्पूनफुल। अगर मैं उसको मेजरमेंट में बताऊं तो 100 ml के बॉटल में आपको एक पॉपी सीड टाइप वो ग्लोब्यूल डालना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल डालना है, और उसका 10 ml निकाल के 50 ml पानी में डालना है, और उस 50 ml पानी का आपको सिर्फ 2 टीस्पून लेना है, द रेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस स्टर्ड थरोली एंड देन गिव ए डोज टू द पेशेंट। ठीक है, इफ ही इज अनयूजुअली एक्साइटेड, अगर सेंसिटिव पेशेंट है तो ये क्या करना है, इफ ही इज अनयूजुअली एक्साइटेड एंड सेंसिटिव, ए टीस्पून ऑफ द सॉल्यूशन जो अपन ने 50 ml पानी में डाला है मे पुट इन सेकंड ग्लास ऑफ वाटर। तो एक अनदर एक सेकंड 50 ml का आप पानी ले लो, उसमें वो 1 टेबलस्पून डाल दो, उसमें से एक उसको स्पूनफुल दे सकते हो। thoroughly stirred and teaspoon dose or more be given. Last thing, there are patients of so great sensitiveness that a third or fourth glass similarly prepared may be necessary. I am not talking, this is what Hahnemann is talking in footnote of 248 कि कभी कभी ऐसे भी सेंसिटिव पेशेंट्स आते हैं, एक तो 50 मिलीसिमल में सेंटीसिमल से आप सोचिए कितना ड्रग जा रहा है, उसमें से भी अगर सेंसिटिव पेशेंट्स आते हैं तो आप ये तरीका कर सकते हैं। ठीक है, मेरे टीचर हमेशा बोलते थे 50 मिलीसिमल और सेंटीसिमल में एक फर्क बताते थे, मैं आपको भी बताऊंगा वो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शस्त्र एंड अस्त्र? एनीवन? लढाईमध्ये शस्त्र पण असतात आणि अस्त्र असतात। अस्त्र बहुत डेंजर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, मतलब वो बहुत सारी पॉपुलेशन को एक साथ मार सकते हैं अस्त्र। ओके ओके, नहीं लेकिन मैं एक को भी मार सकता ना, माय एम इज टू जस्ट टू किल वन। Actually, impact is very important. Astra has a big impact and Shastra has a limited impact. Astra is more powerful than Shastra. सर ब्रह्मास्त्र। शस्त्र के ऊपर कुछ मंत्र पड़े हुए रहते हैं, उसको अस्त्र बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। ब्रह्मास्त्र। हो बेसिकली डिफरेंस ये होता है, शस्त्र आप होल्ड करते हो हाथ में और अस्त्र आप छोड़ते हो, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये समझ गया? हम जो बाण है वो अस्त्र है, जैसे ब्रह्मास्त्र बोले अभी जादव सर, और शस्त्र जो है तलवार है, तलवार जो है वो शस्त्र है। बढ़िया है ना? तो तलवार का ये रहता है कि आप पावर आपके हाथ में रहता है, रिमोट आपके हाथ में रहता है, आप जैसे चाहे उसको चला सकते हैं। हमने एक बार अस्त्र छोड़ा तो वो कहाँ गिरेगा उसका आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ये समझ गया सबको शस्त्र और अस्त्र का डिफरेंस?
तो सेंटिसिमल है वो अस्त्र है. एक बार आपने सल्फर 200 दिया, त्याचा मग तो काही करो. You cannot control where that sulfur 200 will land and what it will do. That is the अस्त्र. शस्त्र ये 50 मिलीसिमल पोटेंसी है. आप उसको अभी देना बंद करो, उसका एक्शन कम हो जाएगा. शस्त्र मतलब तलवार है, आप जैसे चाहे उसको चला सकते हैं. आप पावर आपके हाथ में रहता है, कंट्रोल आपके हाथ में रहता है. इधर से मारना है कि उधर से मारना है, ये आपके हाथ में रहता है. तो 50 मिलीसिमल पोटेंसी ये शस्त्र है. और सेंटिसिमल एक बार छोड़ दिया तो उसका कुछ नहीं हो सकता. और एंटीडोट, मेरे को बहुत स्टूडेंट पूछते हैं एंटीडोट इट्स अ वेरी इम्प्रैक्टिकल कंसेप्ट. प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में इसको डालना इज नॉट पॉसिबल. प्रैक्टिकल ये होता है उसको एंटीडोट करना. द बेस्ट सिलेक्टेड सेकंड मेडिसिन इज द बेस्ट एंटीडोट. क्या बात है. दैट इज ऑलवेज डू. करेक्ट मेडिसिन जो आप सेकंड देते हो, that will do two things. Number one, it will diminish the surpluses caused by the earlier wrong medicine, and second, it will start or ignite the action of cure. इसलिए आपको एक ही काम करना है, रीटेक द केस, क्लोज योर आईज. तुलपुले सर ने जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए, अपने मेंटर लोग जो बताते सब कि व्हाट ही सेज, हाउ ही सेज, व्हेन ही सेज, हाउ ही सेज, हे सगळं डोक्यात आणा. सेकंड बेस्ट मेडिसिन इज द बेस्ट एंटीडोट इन प्रैक्टिस. ठीक है. यस. ओके. सो दिस इज हाउ आपको ये देना है. आप 248 अगर और डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको ये डिटेल में मिल जाएगा. हनुमान ने कैसे बोला है, प्रैक्टिकली कैसे देना है. किसी की कंसेप्ट मत लगाओ, जो ओरिजिनल है. इसलिए मैंने एफोरिज्म और फुटनोट है, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ. और हम क्या कहना चाहते हैं इज वेरी इजी टू से. बट हनीमन क्या इंटेंड करते हैं हमसे, क्या एक्सपेक्ट करता है, हनीमन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लिखने के पीछे, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ ही इज यूजुअली एक्साइटेड तो ये सेंसिटिव में आप 3 से 4 भी ग्लास चेंज कर सकते हैं. ठीक है. ओके. रिपीटेशन ऑफ डोजेस है, ये 248 का 6th एडिशन ही लिया है मैंने. फॉर दिस पर्पस वी पोटेंटाइज अ न्यू मेडिसिनल सॉल्यूशन with perhaps 8, 10, 12 questions. वो आपको डिपेंड करता है कि देना चाहते हो. From which we give the patient 1 or increasingly several teaspoon of doses. I do it in fever 2 hourly, 3 hourly. Even chronic I repeat TDS also 3 बार दे सकते हैं हम लोग, जो indicated medicine है. There is no problem in repeating here. In long lasting diseases, see why this is happening. The action of centesimal is like bomb, but action of 50 millisimal potency is like a spark. तो स्पार्क को कंटिन्यू करने के लिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है ना. ये समझ गए आपको. सेंटिसिमल का धमाका बहुत जोरदार होता है, इसलिए उसको रिपीट नहीं करना पड़ता. 50 मिलीसिमल का एक्शन स्पार्क जैसे होता है, तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको उसको रिपीट करना पड़ता है. और उसको स्ट्रोक्स क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि हमने पहले कुछ स्लाइड में देखा था कि वाइटल फोर्स डजंट एक्सेप्ट द अनचेंज डोज. ठीक है. इन एक्यूट डिसीजेस एवरी 2 or 6 hours एंड इन वेरी अर्जेंट केसेस एवरी आवर और ऑफनर. तो 1 घंटे से भी आप जल्दी उसको रिपीट कर सकते हो. अब कुछ लोगों ने यहाँ ये पूछ सकते हैं कि भाई हे असे प्रकार भरपूर केलेत बरं का काही स्टूडेंट्स ने, कि वो उन्होंने क्या किया कि वो 50 मिलीसिमल का पॉपी सीड, खसखस के दाने जैसे वो जो ग्लोब्यूल रहते हैं ना, वो उन्होंने डायरेक्ट टंग पे डाल दिया. जो हम लोग सेंटिसिमल में करते हैं वही है कि एक पोटेंसी की फिलॉसफी दूसरे में मत मिक्स करो. आपको 50 मिलीसिमल नहीं करना है, आप बिल्कुल 6th एडिशन पढ़ो ही मत. You go back to the 5th edition and read it and apply it in practice. You will be happy. But if you want to go with the centesimals और आप लोग 6th edition पढ़ रहे हैं तो सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी. तो आपको सेंटिसिमल नहीं करना है तो आप प्लीज 6th एडिशन के फंडे उसमें मत डालिए. ठीक है. अब कुछ लोग बोलते हैं कि 50 मिलीसिमल का एक दाना हम लोग डायरेक्ट टंग पे डालते हैं जैसे सेंटिसिमल में, वो क्यों नहीं करेंगे हम. उसका आंसर, क्योंकि हनीमन को मालूम था कि उसके फॉलोअर उतने कुछ मतलब सिंपल नहीं रहने वाले, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे. आंसर हनीमन नहीं दिया है. सच ए ग्लोब्यूल
placed dry upon the tongue is one of the smallest dose of the moderate recent case of illness. Here, but few nerves are touched by the medicine. तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा. पहले तो उसका एक्शन स्पार्क जैसे है. अब उसमें वो पानी डालने के बाद जो सरफेस एरिया टंग का है उसको ज्यादा टच करना पड़ता है, और वैसे ही उसका एक्शन स्पार्क है, जल्दी उतर जाएगा. तो उसको आप पानी में डालोगे तो ही वो सरफेस बढ़ेगा, तो स्पार्क पूरे से काम में आएगा. Then a similar globule crushed with some sugar of milk and dissolved in good deal of water and stirred well before every administration will produce a far more powerful medicine for the use of several days. Every dose, no matter how minute, touches on the contrary many nerves. सिंगल ग्लोब्यूल देंगे तो उसका सरफेस एरिया कम रहेगा, वही ग्लोब्यूल पानी में थोड़ा सा डाल के आप डालोगे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा. ये सिर्फ मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरे किसी लास्ट टाइम जो हमने लिया था उसमें मैंने ये शेयर किया था, ठीक है, बट जस्ट आई विल रीड फॉर यू. दिस इज इन रिगार्ड टू द 50 मिलीसिमल पोटेंसी. हनीमन ने लिखा है. होम्योपैथिक एएनसी मैंने बताया भी था. एफोरिज्म 284 का फुटनोट है ये. The power of medicine acting upon the infant through the milk of the mother is wonderfully helpful. तो हम लोग मदर को एज ए व्हीकल यूज कर सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर अगर है तो. Every disease in a child yields to the rightly chosen homeopathic medicines given moderate doses to the nursing mother. This is moderate doses talking about 50 millisimal potency. And so administered is more easily and certainly utilized than is possible in the later year, isn't it? बाद में मैंने एक बार बताया भी था कि जब हम बड़े होते तो हमको जब छोटेपन में जो अच्छी चीजें पढ़ाई रहती वो हम भूलते रहते, और वो छोटेपन में जो अच्छे संस्कार दिए रहते उसको भूलना मतलब ही बड़ा होना, ऐसे ही हो गया आजकल. तो इसलिए हमको when we the way we think, the way we attract the disease to ourselves, जैसी हमारी सोच है वैसे उसकी बीमारी है. This is we have proved also in our day-to-day practice. They may be at the same time protected antisorically by means of milk of nurse rendered medicinally in this manner. This is one thing. Now this is about the lactating mothers. But the case of mothers in their first pregnancy by means of the mild antisoric treatment, especially with the sulfur dynamization. हनीमन ने कभी भी ड्रग का नाम बहुत उन्होंने अवॉइड किया है का, लेकिन यहाँ उन्होंने स्पेशली सल्फर लिखा हुआ है. डायनामाइजेशन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ दिस एडिशन. प्लीज इसको आप अंडरलाइन कीजिए. प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ दिस एडिशन, 6th एडिशन, 50 मिलीसिमल पोटेंसी, है ना. ये सब चीजें आप सेंटीसिमल में करने मत जाओ. हनीमन ने स्पेशली आपको वहां बोला है कि दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द 6th एडिशन, दैट इज द LM potency. But the case of mothers in their first pregnancy by means of a mild antisoric treatment, mild, especially with the sulfur dynamization, prepared. sulfur कैसे prepare किया आपने? Dynamization according to the direction of 6th edition, is indispensable in order to destroy the sora, that producer of most chronic diseases. Is the biggest producer of that all the diseases is covered by the sora, and 1/7 is shared by syphilis and psychosis. This is all Hahnemann has written in chronic diseases. This is the ratio he has given and talked about the sora. So destroy it both. The sora will get destroyed in both within themselves and in the fetus. Fetus इसलिए क्योंकि अभी he has not come out. Thereby protecting posterity. Posterity मतलब future generation in advance. तो ये आपका बेस्ट ANC है कि आप बच्चा मतलब बच्चों आने से पहले ही उसके जो अंदर जो उसको मिला है थ्रू हिज जीन्स, यू कैन स्टार्ट जेनेटिक क्योरिंग एट दैट लेवल. दिस नीड टू बी, ये जो रिसर्च वाले होते हैं इन्होंने ये सब्जेक्ट लेना चाहिए. दिस इज व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च वी रिक्वायर्ड इन होम्योपैथी. दिस इज ट्रू ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन दस ट्रीटेड. ये उन्होंने पहले किया है फिर शेयर किया है.
नाही आलो. Okay, they have given birth. They means these women have given birth to children, usually more healthy and stronger, to the astonishment of everybody. इससे ज्यादा रिसिप्ट आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा आपको प्रूफ क्या चाहिए? Hanuman himself is talking that they have given the mothers, such mothers who were given sulfur in their first pregnancy have given birth to children usually more healthy and stronger, to the astonishment of everybody. Everybody was astonished. Okay. प्रतीक सर स्क्रीन दिसती है ना? Yes, sir. ओके. बेसिकली डॉक्टर राजन शंकरांचे जे वडील आहेत, पी शंकरन, त्यांचे एलिमेंट्स ऑफ होमिओपॅथी एक पुस्तक आहे, जरूर वाचत ते. इट्स नाइस बुक. दे हॅव कलेक्टेड ऑल द रायटिंग्स ऑफ, बिकॉज देवर स्मॉल बुकलेट्स फ्रॉम बॉम्बे ही यूज टू पब्लिश. रिसर्च अँड चॅरिटीज म्हणून त्यांचं एक ऑर्गनायझेशन आहे. सो ऑल दिस दे हॅव कंपाइल्ड इन वन बुक. दॅट बुक इज इन 2 volumes, एलिमेंट्स ऑफ होमिओपॅथी. So I have taken from P. Shankaran, the father of Dr. Rajan Shankaran. There I have found this diagram, and it's such a wonderful diagram. हम लोग 5th edition में क्या करते हैं? हम लोग पेशेंट को डोज यहाँ पे दे रहे हैं. कर्सर देख रहे हैं क्या आप लोग? yes. यहाँ पे हमने उसको डोज दिया, तो यहाँ पे ये एग्रीवेशन आया, फिर पेशेंट को ठीक लगने लगा, एम्युलेशन आया, फिर पेशेंट को स्टैंड स्टिल हुआ. Yes. नो इम्प्रूवमेंट. यहाँ पे सेकंड दिया, Yes. फिर उसका एग्रीवेशन आया, फिर उसको एम्युलेशन हुआ, फिर स्टैंड स्टिल हुआ, फिर थर्ड डोज दिया, फिर एग्रीवेशन आया और पेशेंट ठीक हुआ. बेस्ट इलिस्ट्रेशन. यहाँ पे आप देखेंगे 2 है एक्स में, यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम है, यहाँ पे वाई में है स्टेट ऑफ द डिसीज. Yes. जहां जहां पेशेंट स्टैंड स्टिल आया, हमको उसको डोजेस देने पड़े. Yes. ठीक है. अभी क्या चेंज हुआ है? अभी आपको अभी ड्रास्टिक चेंज हो गया है. ये है 6th एडिशन. पेशेंट का डिजीज था, आपने यहाँ पे डोज दिया, एम्युलेशन चल ही रहा था, आपने फिर डोज दिया, एम्युलेशन चल ही रहा था, आपने फिर डोज दिया. ऐसे डोज डेली के मंथ टुगेदर देने के बाद पेशेंट सेटल हो गया. और होम्योपैथिक एग्रीवेशन 50 मिलीसिमल में एट द एंड ऑफ द डिसीज में आता है, एंड ऑफ द क्योर में आता है, सॉरी. तो ये थोड़ा सा एग्रीवेशन आएगा, इसका मतलब है कि हमें रुकना है. ठीक है. ये एग्रीवेशन एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट आता है LM में, और बिगिनिंग में आता है सेंटिसिमल में. यहाँ जब तक पेशेंट एग्रीवेट नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा. यहाँ पे आप देखोगे कि पेशेंट को एम्युलेशन था, लेकिन हम लोग डोसेस देना बंद नहीं किए. ठीक है. इसलिए यहाँ पे उसको कंटिन्यू देते रहना है. और जब पेशेंट को थोड़ा स्लाइट एग्रीवेशन आएगा, दैट मीन्स इनफ हैज बीन रिसीव्ड, वी हैव टू स्टॉप द मेडिसिन. Okay. ठीक है. Okay. This is the basic difference of 50 millisimal and centesimal dosage. Yes. Sir, Dr. Ganesh has a question, I guess. That's why he has raised it. Ganesh, तुला काही क्वेश्चन आहे का, की काही नुसतंच बोलायचं? मी फुल स्क्रीन आहे सर, त्यामुळे मला दिसलं नाही ते. Yes, नो प्रॉब्लेम. गणेश, काही क्वेश्चन आहे का तुला? अरे नाही, बाय मिस्टेक ते झालं. नो प्रॉब्लेम. Okay. ठीक आहे सर, कंटिन्यू. Okay. If the accurately chosen medicine was given in proper, small, gradually higher doses, each somewhat modified with renewed dynamization, such increase of the original symptoms of a chronic disease can appear only at the end of the treatment. ठीक आहे प्रतीक सर, म्हणून हा एरो इथे घेण्यात आला होता. Yes. हा एरो याच्यामुळे आला ऍट द एंड ऑफ treatment, when the cure is almost or quite finished. When you had aggravation, that is a presupposition that enough medicine has been received. Stop it.
This also I have taken from Shankaran sir's illustration. This is the new scale. ठीक है, 0/1 is somewhere between in 16x. ठीक है, this is how we have made this. 0/2 is somewhere, आपण डेसिमल नाही घेऊ, आपण सेंटीसिमलच घेऊ. So 0/2 is equal to 10c. 0/3 is 13c. ओके 0/10 is 30, जे आपण रोज देतो पेशंटला. ओके 0/30 is only 80c. ओके आणि आपण डायरेक्ट 200 वर जातो. म्हणजे कदाचित 0/60 140 च्या आसपास कुठेतरी असेल 150. पण मिळत नाही ना सर. हा म्हणजे You ती won't जी get so आरपी easily. पटेल सरांकडे जी आहे ती Yes, ती पण दॅट इज ऑल्सो नॉट 200 पोटेन्सी. not even 200. ते सुद्धा Yeah, 200 yes. टच नाही होऊन राहिलंय. ओके आपण डेसिमल बोलू नये, कारण ह्या पोटन्सी अवेलेबलच नाहीये. ऍक्च्युली Yes. या पण अवेलेबल नाहीये सेंटीसिमल. पण ओके ऑडियन्सला तुम्हाला जस्ट एक समजवण्याकरता की 0/30 इज सिम्पली यू आर टचिंग 80c येस सेंटीसिमल. येस येस. दिस चार्ट ऑल्सो आय हॅव टेकन फ्रॉम. जनरली आपण 0/1 2 3 पर्यंत असतो, म्हणजे माझ्याकडे तरी 0/1 2 3 पर्यंतच्याच आहेत. नाही नाही मिळतात. 30 यू गेट इफ यू गो टू कलकत्ता. नाही, देयर आर नाही. सो मेनी गुड. हा म्हणजे ठेवत नाही ना आपण तरी पण क्लिनिक मध्ये. ते फर्निचर वाढवावं लागतं त्यासाठी. ठीक आहे. आपल्याकडे एक 15 मिनिटं अजून आहेत. स्टार्टेड Yes. विथ, तर आपण एक त्याचे ऍडव्हान्टेज बघूया. SP देननी त्यांचे एक पुस्तक आहे, प्रिन्सिपल्स इन प्रॅक्टिस ऑफ होमिओपॅथी. SP डे इज फ्रॉम डॉक्टर D&A कॉलेज फर्स्ट. त्यांनी त्यात काही दिलेले होमिक म्हणजे 50 मिलिसिमल पोटन्सचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहे, तो आपण एक 10 मिनिटात ते संपूया. द होमिओपॅथिक ॲग्रिवेशन इज केप्ट ॲट द मिनिमम. त्याचं रिझन आपण बघितलं. वी हॅव सीन वाय इट इज मिनिमम, बिकॉज द ऍक्शन इज लाईक स्पार्क. Yes. अँड इफ ॲट ऑल इट अकर्स, इट कॅन बी रेग्युलेटेड. शस्त्र अस्त्र. आणि असतं. हे असतंच. ओके It can be regulated because you stop the medicines, further doses, and it will be checked. In skin diseases, various acute diseases, and difficult and serious cases, the homeopathic aggravation gives rise to immense suffering of the patient, or organic changes ज्याच्यामध्ये आहे आपल्याकडे are brought to such an extent that it endangers the life. सेंटीसिमलचे aggravation ज्यांनी बघितली आहे, sometimes it's horrified of the patient. So the 50 millisimal potency is an amazing achievement in such cases. The deep acting medicine like Lycopodium calcarea can be used several times in a day. हे आपण सेंटीसिमल में हम सोच ही नहीं सकते बॉस. नाही बरोबर. According to the need, and can even be repeated for months together. See friends, you always have to remember, कोई भी wrong medicine 50 millisimal में देख के सिमिलर नहीं होंगी. Yes, obviously. That is the first law. Yes, your law cannot be changed. Yeah. कोई भी मेडिसिन अगर 50 मिलीसिमल में काम अच्छे से करती है तो वो पहले सिमिलर होनी चाहिए. Yes. That is the truth and nothing but truth. Yes. Susceptibility satisfied with the correct medicine first. आपको भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए, पानी नहीं चाहिए. और आपको जब प्यास लगी है तो मैं आपको पानी ही लगेगा, उसमें खाना नहीं चलेगा ना. So susceptibility satisfied with the calcarea, and you are giving him Lycopodium in 50 millisimal. It will never happen. It will never happen. So आपका जो सर ने जो बोला पहले इसमें इंट्रोडक्शन में, वो बहुत जरूरी है. How you arrive at the Lycopodium and then use this potency to use and to elaborate its further benefits. हे फक्त लक्षात ठेवा. Okay, sir, एक मिनिट. Dr. Diksha, you raised your hand. You want to ask anything? Yes. Yes, please go ahead. सर 50 मिलीसिमल में अगर सिमिलर से ही एक्शन होगा, लेकिन अगर डिसिमिलर सपोज दे दी हमने नॉन सिमिलर गलती से सिलेक्ट करके, तो उसमें एग्रीवेशन के भी चांसेस रहते हैं क्या कि नॉन सिमिलर भी दे दी उसमें भी एग्रीवेशन हुआ? ओके. सी वेरी नाइस क्वेश्चन. बेसिकली आपको ये रखना चाहिए कि मैग्नेट के सामने आप कितनी भी लकड़ी घुमाओ,
उसको उसका कुछ नहीं होने वाला, सकता। कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आप जब मैग्नेट के सामने एक हाथ पीस ऑफ आयरन लाओगे तो ही अट्रैक्शन होगा। तो अगर वो बेसिकली डिसिमिलर है तो एट सर्टेन लेवल आपके रिपीटेशन ज्यादा अगर है तो इट विल गो इनटू द मेडिसिनल एग्रीवेशन, यस, बट हियर दैट चांसेस आर वेरी लेस। वेरी लेस, वेरी लेस, इसीलिए तो 50 मिलीसिमल यूज yes, करनी है। आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि पेशेंट का 3rd वीक चल रहा है और आप पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं दे पा रहे हो, यही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी मेडिसिन रॉन्गली सिलेक्टेड है। यस, इसके मैं एक ही एडवांटेज में बताऊंगा। दीक्षा, आई विल कम बैक टू यू, आई विल कम बैक टू यू अगेन। आपका स्पेसिफिक आंसर एक आने वाले इसमें स्लाइड में है। आई विल कम बैक टू यू। ओके ओके, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना सर, वो एक है इसमें नो advantage. प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Okay. The same constitutional medicine can be used both for palliative as also curative purpose simultaneously. अब आपको और क्या चाहिए? आपके पास ऑर्गेनोपैथिक डिजीज वाला पेशेंट है, यू कैन यूज इट फॉर बोथ द थिंग्स। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कैन बी यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब यहाँ पे जो सिमिलर हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, तो मेडिसिन सिमिलर रहेगा तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्यूरेटिव देना है कि पैलिएटिव देना है। उसका सिस्टम डिसाइड करेगा कि आने जो मेडिसिन उसको मिला है सिमिलिमम, उससे वो जहां तक क्योर करेगा, नहीं तो पैलेट करेगा। सिस्टम डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड कर सकते। हमारा काम एक ही है कि सिम्टम्स सिमिलैरिटी देके मेडिसिन देना, दैट्स इट। नो सेपरेट मेडिसिन इज रिक्वायर्ड फॉर पैलिएशन व्हेन नीडेड, सो द होपलेस केसेस मे आल्सो टर्न टू बी क्यूरेबल इन द लॉन्ग रन। लेकिन यहाँ एक वही है कि प्रोवाइडेड योर मेडिसिन इज करेक्ट। Very deep acting medicines, if correctly selected, may be safely administered with no apprehension of any adverse effects. For example, the patient requires phosphorus. ये तो कभी कभी पेशेंट मतलब डॉक्टर्स भी डरते हैं कि नहीं यार मत दे, एग्रीवेट हो जाएगा। But if the organic changes in such a state that the medicine may cause aggravation in centesimal potency, the 50 millisimal potency will be very mild, and that also can be regulated by further resolutions. एग्रीवेशन है, एक डोज उसको कम और करो, कम, हाँ, या उसको जो पानी का जो मीडियम है, फर्स्ट ग्लास या सेकंड ग्लास या थर्ड ग्लास, इस तरह से भी आप उसको फॉस्फोरस देना ही है। यस, तो अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी। या बहुत तो सेंसिटिव मीडिया है तो बढ़ा आगे आगे बढ़ सकते हैं। यस, मीडिया बढ़ा दो, आपका एग्रीवेशन कम हो जाएगा। यस, इंक्रीजिंग द इंटरवल ऑफ द रिपीटेशन, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डिसीज कैन बी क्योर्ड। Can we start the case with 50 millisiemens? Yes, या we can absolutely, वही तो चल रहा है, हमारा वही तो मोटिव चल ही रहा है। यही है, अच्छा, मोटिव ही क्वेरी है यही है। क्या? क्वेरी हाँ, है? हाँ, ये नहीं क्वेरी नहीं, नहीं है, ये हमारा मोटिव है आज का, कि हमें पेशेंट करना बोर ही हो है। गया करके उसको कुछ तो भी अलग देने का, इसलिए प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा है ना। हाँ, स्टार्ट ही उससे करना है, खत्म भी उससे ही करना है। हम्म, लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डिसीजेस कैन बी क्योर्ड इन ए शॉर्टर पीरियड बाय रिपीटेड डोज ऑफ करेक्टली सिलेक्टेड मेडिसिन ऑफ दिस पोटेंसी। ठीक है, यस, इससे पेस बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। और जो क्वेश्चन अभी पूछा था किसी ने कि पेशेंट को हमने करेक्ट मेडिसिन दी है कि रॉन्ग दी है, ये रिसिप्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी एज कंपेयर टू सेंटिसिमल। यस, ये गलत मेडिसिन है, ये आपको बहुत जल्दी पता लगेगा एज कंपेयर टू सेंटिसिमल। इट कैन बी असर्टन विद इन 2-4 days in acute disease, within 2-4 hours भी, whether the medicine has been correctly selected. यस, बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। ये अभी जो क्वेश्चन आया था दीक्षा का, we need not unnecessarily wait long for this purpose. 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी 1 महीना रुकने के बाद पता चलता है कि that medicine, that first prescription was wrong. यस, और आज के जमाने में 1 महीना 1.5 महीना किसी को एसएल पे रखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रिजल्ट आ रहे तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी चीज के लिए आएगा आएगा तो वो पेशेंट भी नहीं आता फिर। यस, After administering a dose of thuja or sulfur in 200 potency, we may have to wait for a fairly long period. आप जल्दी रिपीट भी करो या जल्दी कंक्लूजन भी निकाल के लाओ तो वो भी एक हरीड प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसको भी अवॉइड करना है। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट एक मीडियोकर सॉल्यूशन है। But in this potency, the action can be noticed after administering only a few doses consecutively. Thus,
द वैल्यूएबल टाइम फैक्टर, आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम. इन द प्रोसेस ऑफ क्योर नीड नॉट टू बी वेस्टेड अननेसेसरीली. इतना वेट करने के बाद पता चला दैट मेडिसिन को छोड़ना पड़ेगा, गलत ही था। ये जल्दी हो जाएगा आपका काम. दीक्षा, ये समझ गया आपको? Yes, sir. In cases of mental diseases where there is an apprehension of aggravation even of very low potency of the centesimal scale, the 50 millisimal potency can be effect the cure smoothly without the least aggravation. Mental cases मतलब I am talking about the established cases of schizophrenia or bipolar or something या OCD, इस तरह के केसेस की बात हो रही है. उसमें एग्रीवेशन आया तो बहुत डेंजर रहता है, ठीक है, जो साइकेट्रिक केसेस होते हैं. That is better way we understand these things. तो इसमें आप होम्योपैथिक इसमें आप सेंटीसिमल से जगह 50 मिलीसिमल यूज करोगे तो एग्रीवेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं. इन वन साइडेड डिसीज आपको सबको पता है, वन साइडेड डिसीज क्या होते हैं. उसमें एक सिम्टम लेके पेशेंट बोलता है बस हेडेक है, बाकी सब कुछ ठीक है. इन केसेस में फिर तकलीफ जाती है. तो बना हनीमन ने लिखा है कि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज के बाद सबसे डिफिकल्ट अगर कोई है तो वन साइडेड डिसीज. और अदर केसेस विच अपीयर टू बी बियॉन्ड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ क्योर कैन बी कन्वर्टेड टू द क्यूरेबल स्टेट वेर एवर पॉसिबल. 50 मिलीसिमल यूज करने के बाद उसका अगर कोई भी 1% भी चांस है तो उसको हम अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं, उसको क्यूरेबिलिटी के फैक्टर में ला सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस मेडिसिन विद दिस पोटेंसी. In cases of suppression which occurred long ago, this potency worked marvelously because where 1 or 2 doses of the centesimal potency fail to retrieve the suppressed symptoms, the repeated application of this potency can do this and the patient is put on the process of cure. This I have myself has observed in the clinical experience. Okay? Then next we have is in the primary stage of SORA. We in this system we don't give too much importance of miasms, but still if it has come we should study now. In the primary stage of SORA, syphilis or psychosis, where Hahnemann has advised for repeated administration of medicine. Repeated administration of medicine को एक word दिया Hahnemann ने, mouthful of doses. एक्चुअली वो रेलेवेंट नहीं थी इसलिए मैंने वो स्लाइड डिलीट किया टाइम पे, नहीं तो एक्चुअली वो स्लाइड में है कि माउथफुल ऑफ डोजेस. तो हम लोग जो सेकंड ग्लास जो 1 टीस्पून निकालने के बाद पूरा फेंक देते हैं, जब ये प्राइमरी स्टेज का सोरा आता है, प्राइमरी स्टेज का सिफिलिस और साइकोसिस होता है, तो यू नीड टू गिव माउथफुल ऑफ डोजेस. माउथफुल ऑफ डोजेस मतलब द होल दैट वाटर पेशेंट हैज टू कंज्यूम. बट यहाँ इतना अप्लीकेबल नहीं था इसलिए दैट्स व्हाई डिलीटेड. This potency proves to be very helpful and efficacious when you are treating the 3 miasms at the primary level. Now this is important. In case of where only palliation is to be resorted to, this potency is indispensable for ideal palliation. Palliation without the least chance of aggravation. और क्या चाहिए अपने को? Palliation हो रहा है, cure हो रहा है, that will be decided by his vital force, his system. Our job is to take the symptoms, match the domain with the co-domain, prescribe it with whichever school we follow. Yes. करना मैचिंग सेंटर है. होम्योपैथिक मेडिसिन क्लिनिक को मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि अपना मैचिंग सेंटर है. होम्योपैथिक दवाखाना मतलब मैचिंग सेंटर. एक लेके आओ, उसका मैचिंग ढूंढना है. तो मैचिंग सेंटर मुझसे ज्यादा कुछ नहीं है आपको, बट उसके लिए कितना हमको करना पड़ता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द मेडिसिन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेट इन विच द पेशेंट हैज अप्रोचेस, ऑल दिस थिंग्स. बट अल्टीमेटली मोटे मोटे इसमें देखोगे तो इट्स अ मैचिंग सेंटर कि एक पेशेंट लेके आया, उसका मैचिंग आपको देना है, जा भाई, ठीक है. तो पैलिएशन होना है कि क्योर होना है, दैट विल डिसाइडेड बाय द सिस्टम. Palliation without the least chance of aggravation, rest assured, है ना. धोनी है ना, धोनी कुछ ना कुछ तो करके आएगा, ये कॉन्फिडेंस है ना आपको कि कुछ नहीं होगा, धोनी है. तो 50 मिलीसिमल में आपको ये मालूम रहता है कि जो भी हो जाए एग्रीवेशन नहीं आएगा. तो ये केसेस में आपको वो एश्योरेंस बहुत जरूरी होता है. ओके, दिस इज माय लास्ट स्लाइड. आपने अगर डेविड लिटिल का नाम सुना होगा तो डेविड लिटिल का एक अच्छा मुझे एक स्टेटमेंट मिला था 50 मिलीसिमल के ऊपर,
और डेविड लिटिल कहते हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एलएम पोटेंसी वाज हनीमन्स लास्ट ग्रेट गिफ्ट. दिस इज रियली ट्रू. दैट हनीमन की आप सोच देखिए कि हाउ ही कुड इमेजिन. पहले तो उनको सोचना पड़ा कि लॉ ऑफ क्योर क्या है. उन्होंने बायोग्राफी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि भगवान ने अगर बीमारी दी है तो दवा भी दी है, तो कुछ ना कुछ तो लॉ ऑफ क्योर तो होगा. फिर उन्होंने ढूंढ के निकाला आउट या एक्सीडेंटली निकाला. उसके बाद उन्होंने वर्क किया कि लॉ ऑफ क्योर इज द लॉ ऑफ सिमिलिया, या लॉ ऑफ सिमिलिया इज द लॉ ऑफ क्योर, which is nature's law of cure. But later on, he has to think that the diseases are not mere physical. There is some connection between somewhere inside, and that is not seen. So he called it as a dynamic. So ये भी उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था. हनीमन को सबसे ज्यादा अचीवमेंट था द प्रोसेस ऑफ डायनामाइजेशन, कि कैसे कोई चीज फिजिकल से डायनेमिक लेवल पे लेके जा सकते. कैन यू इमेजिन बॉस, व्हेन आई विजिटेड यूरोप, मैं 10 मिनट उनके चेयर पे साथ बैठा था. दैट वाज माय ग्रेटिट्यूड टू दिस ग्रेट मैन, कि जो सल्फर है, जो लाइकोपोडियम जो फिजिकल फॉर्म में है, उसको डायनेमिक लेवल पे लेके जाने का जो प्रोसेस है उसको डायनामाइजेशन बोलते हैं. हैट्स ऑफ टू हनीमन, आवर बॉस, कि उन्होंने ऐसा प्रोसेस निकाला. जब हम लोग छोटे थे 10वीं 11वीं में, तो स्टार ट्रेक करके एक सीरियल आती थी, प्रतीक सर. यस यस यस, आई नो स्टार ट्रेक. यस यस, उसमें एक सीन हुआ करता था कि जो कैप्टन और जो एंटरप्राइज के जो शिप के जो लोग थे, वो दूसरे इसमें जाने के लिए एक प्रोसेस था, डायनामिकली कहीं जाते थे, उसको बोलते थे एनर्जाइज. यस, तो दैट हैज बीन मेड बाय हनीमन. So salute to the master. यस यस. So that was energize. आप अगर कोई एक YouTube पे देख लो कि स्टार ट्रेक का, तो they used to vanish from one thing and used to go to some other level. तो सेम हमारा जो प्रोसेस करते हैं, ट्राइचुरेशन, सक्रेशन, जो भी है, तो we take that physical medicine from physical to dynamic level. तो that is a great thing Hahnemann made. But उससे भी great इन्होंने ये लास्ट वर्क था हनीमन का, 50 millisiemel potency. 50 millisiemel, yes. The introduction of the new LM potency was Hahnemann's last gift, 1842. He died in 43. Yes. To the homeopathy, and was the outcome of his 50 years of research. This is wonderful, and we will have some day or other I will show you the current आज का हनीमन का वो रूम कैसा है, how that the whole school. I also visited the school also where Hahnemann learned. अगर टाइम मिला तो कभी वो भी रखेंगे. That's a great fun. 15 days we were following Hahnemann in every corner. With this higher dilution ratio, Hahnemann found just what he was searching for. उसको just यूरेका, उसको यही चीज चाहिए थी कि मेडिसिन स्ट्रॉन्ग जरूर होनी चाहिए नेचुरल डिसीज को ठीक करने के लिए, बट इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि वो एग्रेवेशन पैदा करे. सर्चिंग फॉर द ब्रेक द इम्पास in treating the most chronically ill of his patient. The 1:50,000 dilution ratio was to replace the 1:100, that is centesimal ratio, as it was very powerful yet gentler. Powerful और gentler, देखो कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल है ये. विद्या विनय न शोभते. आपके पास नॉलेज है और एटीट्यूड नहीं है, बहुत मुश्किल है. इसलिए वहां लिखा है कि विद्या है आपके पास, नॉलेज है, लेकिन आपके पास अगर विनयता नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है. तो यहाँ पे पावर है, लेकिन एट द सेम टाइम जेंटलर भी है. At last he was satisfied that he had found the most perfect method and had fulfilled the highest ideal of cure, which is a rapid, gentle and permanent restoration of health. This is David Little. चलो, thank you for your time. Thank you sir. एक क्वेश्चन है, please repeat how to prepare the dose. सर एक मिनट में पॉज कर दो जरा. You can answer the question. I'll come back. Okay. You want to see that slide again? Who has asked this question? Kumudini. Yes sir, yes.
तुम्ही you can go and have this aphorism completely footnote read. I will share in the group. ओके सर. This slide you can take. मी सांगितलं ना 100 ml मध्ये घेऊन तुम्ही त्याला ग्रॅज्युएट करू शकता, त्याच्यामध्ये ग्रॅज्युएशन लावू शकता 10 ml चे, आणि पेशंट हॅज टू टेक 10 ml each time he has to take, and then add into 50 ml. Out of that 50 ml he has to take 10 ml, and the rest can be thrown. सर ग्रेट. मैं एक्सपीडिएशन का पहला स्लाइड देखना चाहूंगी. पहला स्लाइड देखना था. जी एक्सपीडिएशन ये नहीं सर एक्सपीडिएशन SP देखा. जी पहला वाला. हाँ, ये पहला SP देखा है. जी जी जी